Today I come to the second part of Gandhian philosophy, Satyagraha. Satyagraha is a revolution without bloodshed. It is based on the Gandhian principles of truth and non-violence. Gandhi believed that violence begets violence. Therefore, non-violence should be used as a weapon against violence. Being a spiritualist, he believed that everyone had innate goodness which had to be awakened in order to fight evil. Self suffering is a way by which one can improve upon self control and self determination, which leads to Satyagraha, and Satyagraha finally defeats evil. And the characteristics of Satyagraha are as follows. Firstly, non cooperation, which means keeping away from government functions and disregarding the government so that he is able to understand that the public is not pleased with it. Secondly, is civil disobedience, which means disregarding government laws and rules, but all this should be done without any kind of violence. Thirdly, is strike, which means abstaining from official work and official duties and keeping away from the office in general. Fourthly, is hunger strike, which means abstaining from food and also abstaining from work till the adversary finally concedes demands. Fifth is picketing, which means that the protesters squat outside the official place till the officer concedes demands. Walkout means walking away from the from official work so that the officials realize that they are not justified in what they are saying. Finally, is migration, which means to leave the place forever or leave the country forever so that the administration realizes that the dissatisfaction of the people in general. Gandhi felt that the adversary gets upset and irritated and therefore finally gives in to just demands, because just as Buddha could bring about large scale and sweeping changes, similarly, a satyagrahi too can bring about large scale changes by truth and non violence. Gandhi felt that this method should be used carefully and not without cause, because satyagraha used frequently loses its importance. No one should be forced to become a protester, because satyagraha requires complete commitment to the cause. Violence should be avoided and shunned in any way, because violence never solves a problem. Ultimately, truth will triumph, because moral courage always is able to defeat evil. गांधी ने सत्य और अहिंसा को एक प्रकार का उपकरण बनाया जिसके माध्यम से वे प्रतिद्वंदी को परास्त करने में सफल हुए। गांधी ने स्वयं अपने आप सत्य और अहिंसा को प्रयोग करके सबके सामने ये प्रदर्शित कर दिया कि इस प्रकार से किसी भी प्रतिद्वंदी को हराया जा सकता है। ये एक प्रकार का रक्त विहीन परिवर्तन है और इसमें सत्य और अहिंसा के द्वारा आत्मबल की वृद्धि की जाती है। जब चरित्र बल इतना अधिक बढ़ जाता है कि प्रतिद्वंदी खुद उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। क्योंकि गांधी आध्यात्मवादी थे, वे मानते थे कि हर एक व्यक्ति के हृदय में कहीं न कहीं शुभ विद्यमान है। केवल उस शुभ को जागृत करने की आवश्यकता होती है, अपने आप ही अन्याय का खंडन हो सकता है। गांधी इसलिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग करते थे। पहला था असहयोग, अर्थात सरकार के साथ सहयोग न करना, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में भाग न लेना। यह दिखाता था सरकार को कि जनता उससे प्रसन्न नहीं है। सविनय अवज्ञा उसे कहते हैं जब सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया जाता था
और सरकार के किसी की भी बात को मानने के लिए जनता तैयार नहीं होती थी। अर्थात सरकार का विरोध करके वो दिखाती थी कि वो उसके आदेशों का पालन नहीं करेगी। तीसरा है हड़ताल, अर्थात कार्यालय में काम बंद कर देना और किसी भी प्रकार से किसी की भी मदद न करना। अनशन अर्थात भोजन का भी परित्याग करके सरकार के कामों का भी परित्याग करना, अर्थात दोनों का ही परित्याग करना है, भोजन का भी और कार्यालय का भी। तब उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धरना अर्थात कार्यालय के बाहर बैठकर अनशन करना, अर्थात भूखे पेट बिना खाए पिए अपनी बात को रखते हुए कार्यालय के बाहर बैठे रहना अनशन कहलाता है। बहिष्कार तब होता है जब काम बंद करके व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर जाने लगता है। और हिजरत और माइग्रेशन तब कहते हैं जब कोई व्यक्ति हमेशा के लिए चला जाता है और पुनः उस स्थान पर वापस नहीं जाता। गांधी को लगता था कि सत्याग्रह अत्यंत प्रभावशाली है, परंतु बहुत सावधानी से इसका प्रयोग होना चाहिए। बार बार सत्याग्रह करने से उसकी शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए बहुत आवश्यक न होने पर सत्याग्रह नहीं करना चाहिए। किसी को भी ज़बरदस्ती सत्याग्रही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सत्याग्रह के लिए उस कारण जिसके लिए कि सत्याग्रह हो रहा है उसके प्रति पूर्ण सम्मान और पूर्ण समर्थन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्य अंततः विजयी होता है और इससे के लिए आत्मत्याग और आत्मसम्मान एवं आत्मशक्ति पर्याप्त होती है। अगर किसी में आत्मबल पर्याप्त होता है तो वो सामाजिक परिवर्तन बहुत आसानी से ला सकता है। जैसे बुद्ध ने संपूर्ण समाज को परिवर्तित कर दिया था केवल आत्मत्याग और आत्म शक्ति के द्वारा। उन्होंने भी किसी भी प्रकार से हिंसा का उपयोग नहीं किया था। अतएव सत्य और अहिंसा को अशुभ की समाप्ति के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर के लिए हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। धन्यवाद।